वक्त हर खबर से आपको खबरदार करने का है, जहां आपको सबसे पहले संसद में होती हंगामेदार राजनीति से हम खबरदार करेंगे। जहां अभी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी बोले हैं, कल शाम प्रधानमंत्री लोकसभा में बोलेंगे। वहीं संसद में आज कुंभ भगदड़ को लेकर भी जमकर हंगामा हुआ और दिल्ली के चुनाव में मतदान से पहले प्रचार का अंतिम राउंड इस समय चल रहा है। मतलब लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा की शुरुआत सोमवार को यानी कि आज विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने की। 42 मिनट से अधिक लंबे अपने भाषण में राहुल ने कई मुद्दों पर सरकार को जमकर घेरा। संविधान की प्रति दिखाकर कहा कि इसी के सामने प्रधानमंत्री को झुकना पड़ा है, संविधान ही देश पर राज करेगा। I remember before the elections, all of you were saying 400 par, and you were saying you would change this. And then I was glad to see that the Prime Minister walked in and then was forced to bow his head in front of the Constitution. It was a moment of pride for all Congress people that we had explained to the Prime Minister and to the whole country that no force will dare touch this. I know that the RSS has never accepted this. Mohan Bhagwatji has said that India didn't get independence in 1947. He has said that this constitution is meaningless. I know that that is at your heart. We will never let your dream come true. This constitution is going to rule India always. Now, एक मिनट आप प्रतिपक्ष के नेता हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि जो विषय आप रखें वह तथ्यों के आधार पर रखें, उचित होगा। मैंने आपको पहले भी कहा, और जो सदन के सदस्य नहीं है उनकी चर्चा न करें। सर बताता हूं, सर मोहन भागवत आप नियम प्रक्रियाओं की पालन करें, आपसे अपेक्षा। सर मोहन भागवत जी ने स्टेटमेंट दिया। मोहन भागवत का Speaker sir, Mohan Bhagwat ji made a statement saying that India did not receive independence in 1947. It received independence when the Ram Mandir was inaugurated. We will place that on the table. राहुल ने चुनाव आयुक्त की चयन प्रक्रिया की कमेटी से चीफ जस्टिस को हटाए जाने पर प्रश्न उठाया। महाराष्ट्र के चुनाव में बीजेपी को जिताने के लिए वोटर्स को जोड़े जाने का गंभीर आरोप भी लगाया। The voting population of Himachal Pradesh was added to the voting roll of Maharashtra, meaning the entire population of Himachal Pradesh was added to the voter rolls of Maharashtra. Please understand what I am saying. In Lok Sabha, the difference between Lok Sabha and Vidhan Sabha was the population of Himachal. The entire population. Almost 70 lakh new voters suddenly arrived between Lok Sabha and Vidhan Sabha. Now, the most interesting part, and the Prime Minister is not looking at me. The most interesting part. Suddenly. The most interesting part is संसद में राहुल के बोलने के दौरान एक समय ऐसा भी आया जब खूब हंगामा हुआ। कारण बना राहुल गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर न्योते वाला वार। राहुल ने अपने भाषण में कहा कि हमारे देश के विदेश मंत्री अमेरिका जाते हैं और वहां आग्रह करते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री को बुलाया जाए। इस पर संसदीय कार्य मंत्री बोले कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, माफी मांगे। When we talk to the United States, we would not send our foreign minister to invite our Prime Minister to his coronation. We would not send him 3 or 4 times, please invite our Prime Minister. Because if we had a production system and if we were working on these technologies, the American President would come here and invite the Prime Minister. So it is important to understand where a... Foreign policy. He's not opposing. Leader of opposition.
leader of opposition cannot make such serious, unsubstantiated statement. This is related to the relation between two countries, and he is making a unverified statement about invitation of the Prime Minister of our country. Is matter of our dignity. How can you make such kind of statement? He is leader of opposition, sir. He should be responsible in making such statement. Sir, LOP is giving us very positive suggestions. Why they are worried, sir? For the country, he is giving. Leader of opposition has the information from any official source. He must inform the House. If leader of opposition has the information, please inform the House. Who has told you that foreign ministers have visited for the purpose which you have mentioned? You must specify it. So, I'm sorry that disturbed you, that question. I apologize for disturbing your peace of mind. It's okay. I've apologized for disturbing your peace of mind. I'm sorry. Apologize for lying to the House. ऐसा नहीं होता है. तो सीरियस होना चाहिए लीडर ऑफ अपोजिशन को. कम से कम देश के मामले में तो एक हो. देश के मामले में तो एक वॉइस से बोलना चाहिए. ये गलत बात है. ये ठीक नहीं है. लीडर ऑफ अपोजिशन को इस तरह का बयानबाजी नहीं करना चाहिए. ये गंभीर विषय पर चर्चा चल रही है. हंगामा संसद में तब भी हुआ जब चीन को लेकर राहुल गांधी बोले. राहुल गांधी ने कहा कि चीन घुसपैठ करके हमारे देश में बैठा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे इनकार करते हैं, जबकि सेना ये बात मानती है. The Prime Minister has denied it, and the army has contradicted the Prime Minister. It's true. The Prime Minister has denied it. The Prime Minister has denied it, and the army has disagreed with the Prime Minister that China is sitting on 4,000 square kilometers of our land, of our territory. ऐसा इस सदन में अब मन चाहे बात नहीं बोल सकते हैं. ये बिल्कुल ठीक नहीं है सर. ये सीरियस मामला है. आप फॉरेन पॉलिसी पे, बॉर्डर इश्यू पर आप अपना कैसे मजाक बात कर सकते हैं? अपना मन कहानी आप बना के बोल रहे हैं. ये तो बहुत सीरियस मामला है. विदेशी प्रतिपक्ष के नेता जो आप विषय बोल रहे हैं, उसके तथ्यों को Let me speak. सदन के पटल पे रखना. आप पानी. अनुरोध है, लीडर ऑफ अपोजिशन बोले, हम लोग शांति से सुनेंगे. ये आपका अधिकार है बोलने का, मगर आप मन चाहे ऐसा सीरियस इशू पे कैसे बोल सकते हैं? ये सीरियस मामला है. आप सदन में बोल रहे हैं, से बोलते हो, फॉरेन मिनिस्टर का मुश्किल देते हो, सीमा का बात ऑफिशियल वर्जन से अलग बात करते हो. ऐसा मत बोलिए. ये देश के लिए ठीक नहीं है. महत्वपूर्ण विषय आपको सीरियस होना पड़ेगा लीडर ऑफ अपोजिशन. और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है. राहुल गांधी के भाषण के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू की लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात चल रही है. सूत्रों के अनुसार अध्यक्ष से मांग की जाएगी कि राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं उनको प्रमाण देना होगा और प्रमाण सदन के पटल पर रखने होंगे, और अगर प्रमाण नहीं राहुल गांधी देते हैं तो उनको सदन की कार्रवाई से हटाया जाएगा. तो इस समय किरण रिजिजू की बैठक चल रही है. हिमांशु मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए. हिमांशु, क्या ऐसी बात है जिसे कार्रवाई से हटवाना चाहते हैं किरण रिजिजू? देखिए, बिल्कुल जो बात है, राहुल गांधी ने चाइना के साथ जो बॉर्डर एरिया के डिस्प्यूट की बात कही. उन्होंने कहा कि चाइना जो है वो भारतीय भूमि पर घुस आया है, और उसको लेकर किरण रिजिजू ने जो है वो लोकसभा स्पीकर से मुलाकात की और उन्होंने मांग की है कि उनको जो है जो तथ्य, जो बात कही है, अगर उसको तथ्य प्रमाण नहीं देते हैं तो उसको सदन की कार्रवाई से जो है एक्सपंज कर दिया जाए, उसको हटा दिया जाए. तो ये बात स्पीकर ने भी कही थी. जो बात एलओपी कह रहे हैं उसके प्रमाण जो है वो टेबल पे रखे, यानी कि अगर वो अपने प्रमाण नहीं देते हैं, ऑथेंटिकेट नहीं करते, जो बात उन्होंने कही है उसके तथ्य नहीं देंगे, उस बात को एक्सपंज करने के लिए संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की.
बहुत धन्यवाद हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे हैं। राहुल गांधी ने जो भी आरोप लगाए हैं, अगर उसके प्रमाण आप नहीं देते हैं तो वो सारी बातें सदन की कार्यवाही से निकाली जाए। कांग्रेस शासित तेलंगाना की जाति जनगणना का हिसाब बताते हुए राहुल गांधी ने कहा कि जाति जनगणना के बाद ही असली विकास हो सकता है। और फिर बीजेपी के दलित ओबीसी सांसदों को लेकर ऐसी बात राहुल गांधी ने कही कि सदन में जमकर हंगामा होने लगा। There are OBC MPs in the BJP. There are OBC MPs in the BJP. There are Dalit MPs in the BJP. There are Adivasi MPs in the BJP. Remember, you are OBCs, you have 50% of the population, and you have absolutely no power. I know that you're sitting there and you cannot even open your mouth. That is the truth of the country. प्रधानमंत्री का चेहरा आपको दिखाई नहीं देता है। जाति जनगणना, प्रधानमंत्री का चेहरा आपको दिखाई नहीं देता है। आर्किटेक्चर, अंधे हो गए participation, revolution, ये अंधेरा हो गया है। पार्लियामेंट में ये कुछ दिखता नहीं है। सोनिया गांधी, प्रियंका, ये इधर अपोजिशन को कुछ दिखाई नहीं देता है। ओबीसी बात करते हैं। दिखाई नहीं देता है। राहुल गांधी ने बजट का हलवा भी सरकार को याद दिलाया। पिछली बार हलवा सेरेमनी की तस्वीर को लेकर राहुल गांधी ने सवाल उठाया था कि इसमें कितने पिछड़े और दलित अधिकारी हैं, जबकि राहुल गांधी बोला कि हलवा बांटने वाली फोटो तक नहीं दिखाई दी। I am absolutely convinced that the OBC population of this country is not one less than 50%, possibly 55%. 16% are Dalits, 9% are Adivasis, 15% are minorities. Last budget, there was a photograph. You remember the photograph? Of course. वो मक्खन बांटने वाली, हलवा बांटने वाली फोटो। मैं हैरान हो गया कि इस बार फोटो ही हटा दी। हलवा खिलाया मगर दिखाया नहीं किसको खिला देता। प्लीज। और अब संसद में ही कुंभ को लेकर हंगामेदार राजनीति से भी आइए आपको खबरदार कर दें, जहां आज सदन शुरू होते ही कुंभ भगदड़ को लेकर चर्चा की मांग विपक्ष की तरफ से की गई। चर्चा तो नहीं हुई, लेकिन जिस कुंभ भगदड़ में मृतकों की संख्या तक बताने में भगदड़ के दिन प्रशासन को 17 घंटे लग गए थे, वहां अब साजिश का दावा किया जाने लगा है। बीजेपी के सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि हादसे की जांच चल रही है और इसमें साजिश की बू आ रही है। कल रात तक खबर मिली 35 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। 35 करोड़ लोग। उन्होंने दुख भी प्रकट किया, जो लोग एक हादसा हुआ उसकी भी जांच चल रही है और उस जांच में भी षड्यंत्र की बू आ रही है। जब पूरा जांच सामने आएगी तो वो हादसा किसने करवाया उनको शर्म से झुकना पड़ेगा, ये भी मैं कहना चाहता हूं। उपसभापति जी, मुझे एक बात जरूर कहनी है, ये कुंभ का नाम सुनते और सनातन का नाम सुनते उनको परेशानी क्यों हो जाती है? क्या हो जाता है? जिस तरह से और एक बात मैं इस सदन में साफ साफ करना चाहता हूं, सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, ये आप जान लीजिए।